सभी को नमस्कार। आपका जिस्ट के एजुकेशन और एआई ट्रैक में स्वागत है। वेलकम टू द जिस्ट एआई एंड एजुकेशन ट्रैक. Today we have a very exciting event. First of all, apologies for changing the time. We had some constraint that we had to accommodate, तो इसलिए थोड़ा सा time पहले करना पड़ा. But hopefully a lot of you will join. And if you have not joining, I'm sure you will catch this event on YouTube after it's done. If you have to ask questions, you have to be here. So today we have a very exciting event. We have multiple teams from Atal Tinkering Labs. These are children who, against all kinds of kind of constraints, have really made India proud. So some of these teams will be showing their and what they have done in their Atal Tinkering Lab associations, और उन्होंने कैसे भारत को एक हर जगह भारत की इनोवेशन को हाईलाइट किया है. तो to start with, I will invite Dhananjay ji and Captain Srinivas. आप प्लीज कार्यक्रम चालू कीजिए. This is your day. आज बच्चों का दिन है. I will just highlight that हमारे ऑडियंस में हर तरह के शिक्षक हैं, हर तरह के हर लेवल के लोग हैं. आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं जो स्कूलों में काम करते हैं, यहाँ पर अलग अलग फंक्शनरीज हैं, वाइस चांसलर्स हैं. तो दिस इज अ वेरी हाई पावर्ड ऑडियंस, और मुझे आशा है कि इस प्रेजेंटेशन से और बच्चों का ये जो मैसेज है, जो इतना आप लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं, ये और जगह फैले. और ऑडियंस की एक और बात कि ऑडियंस में लोग कई देशों से हैं, केवल इंडिया से नहीं है. तो ये सारी चीजों के साथ श्रीनिवास जी, धनंजय जी, माइक इज टू यू नाउ. प्लीज स्टार्ट द प्रोग्राम. Yeah, good morning everybody, and good evening for the viewers from India. So we are very sorry that we have to make you wake up early in the morning at 7 a.m. from America and from different parts. But then yes, we have the constraint. So welcome you, and as per the tradition of Atal Tinkering Lab, we just have 2 minutes of Saraswati Vandram, and then straight away we will start. Okay, after that, we'll just take a look at the lab, and this is one of the innovations which they have done. And this lab is full of innovations. This lab is full of innovations, and I'd just like to show as to what is the innovation they have done. This particular thing, which is the lighting for today, this is also an innovation. Camera on, hai? Okay, so this is the innovation. Dikhao jara. Yeah, so this is also done by the students of this particular lab for lighting of the thing. And then just have a look at the lab before I start the proceedings. So these are the wonder kids whom you're going to meet one after them after the project to the projects. Okay, so let me start. On behalf of ATL Bilaspur and ATL Gaya, I welcome you all to this wonderful live webinar on this Sunday morning. And I'm sure that you are going to, these projects which you are going to see in the next 1 hour or so by these wonder kids would keep you in a state of shock and happiness throughout the day. Let me introduce myself. I am Group Captain Y. Srinivas, retired. I served the country for 23 years and then took a voluntary retirement. And I am here as a voluntary mentor for ATL Bilaspur. And
that's a small introduction about me. I'm not going to go into the, but I'm going to bring you the man of the moment. Let me introduce you to the person who is in charge of ATL lab at Bilaspur. He is a motivator. He is a teacher by profession. He's a great leader and also is an educator. And if ATL Bilaspur has done something wonderful in India, bringing laurels to the name in India and internationally also, it's because of this particular person. It's told that if a leader is good, the team will always be good and team can do wonders. And that's exactly what ATL Bilaspur has done under his leadership. So welcome, Mr. Dr. Dhananjay Pandey. Sorry, Dr. Dhananjay Pandey, welcome to this show. Just नमस्कार नमस्कार आप सभी को एटीएल बिलासपुर से डॉक्टर धनंजय पांडे का अभिवादन अभिनंदन। एटीएल लैब बड़ी प्रसन्नता है इस वेबिनार से जुड़ने पर और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, so the process जो हम करेंगे वो इस तरह से होगा। I'll be talking English, लेकिन बच्चे हिंदी में बात करेंगे so that everybody is convenient. So first of all, just to have an overall view as to what is ATL and how it works, I'll just take you through. Dr. Dhananjay will just ask me a few questions so that make everybody is on the same platform to understand as to what is ATL all about. श्रीनिवास सर, can you tell what is ATL and what is ATL mean for you? Well, to start with, let me tell you the vision about ATL. The vision of ATL is to cultivate 1 million children in India as neotric innovators. Now, if you see the ATL Innovation Mission is established by Atal Tinkering Lab, which is spread across schools in India, and there are 5,000 odd of these ATLs across India with the basic purpose of bringing in the creativity among the child and, of course, the ultimate aim of having 1 million children in India. Now, the objective is to foster curiosity, creativity, imagination in young minds and inculcate the skills such as design, mindset, computational thinking, adaptive learning, and physical computing, which is somehow not there in our education system as of today. Sir, that is the wonderful information given by you. And you were associated with the lab from a year. Sir, what steps do you follow in this lab, or does the ATL follow while doing the innovation or the research? Well, Dr. Dhananjay, before I go into the steps what we follow, I would like to tell you that Atal Innovation Mission is run by Niti Aayog. Like I told you, its aim is to develop 1 million metric innovations. And now what I have observed in ATL Bilaspur is like that it's trying to bridge the gap between the government and the requirement of the society. Now, if you see, if anything, there is a requirement in the society, if you go by the government procedures, it takes lots of steps to be done, and ultimately the requirement is not met by the society. So what you are approaching here in this school and what I have observed is that you approach the society directly, comprehend the problem which is there in the society, further understand the feasibility, and then start designing the problem to resolve that problem. Now, coming to your thing, like what steps you follow is like we have divided the whole children into 2 or 3 groups. Like one group will look after the electronics, one group will look after the science, the other group will look after the social. Now, these students in the form of groups, they go to the people, go to the society and ask them about the problem and realize the problem. They have a set of questionnaire with them. They go and ask the questions and fill up the answers. And out of these problems, what the society is facing, they find out the most pressing problem which is there in the society. Now, once they have done that, they come back, they brainstorm, they ideate, they design thing, they show the empathy, then do the feasibility design and the product making, and then testing and retesting. Now, once the product has been designed and is tested and retested, it's fine-tuned, and the final product is made. But once the final product is made, they submit it to different platforms like the NITI Aayog, CSIR, etc. So the ultimate is the ultimate output is a project which is converted into a product.
I Thank- hope I'm able to answer your question. Definitely, sir. And thank you for your mentoring. And during the mentoring sessions, you have gone throughout the different projects made by this lab. How do you read this lab or adult tinkering lab in future or its achievements? Well, for the viewers who are there, like, let me tell you few of the achievements which this lab has taken. I'll just try to share the screen so that it becomes very clear. Okay, so these are few of the achievements which this lab has done till now. It has won the marathon for 2017, 2018, and 2019 continuously for 3 years. And there is a national hackathon also. Again, here, this Adult Tinkering Lab Bilaspur has won all the 3 years, 2017, 2018, and 2019. And it has also given to a presentation to the present President of India. They have met, these Wonder Kids have met the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. And also they have given a presentation to Vladimir Putin, the Russian president, and represented India in Singapore, Thailand, and other Moscow with their projects. Apart from that, there are many other rollers which I'm not going to, but the latest achievement I would like to bring to you is the 3 projects in the Marathon 2020 has been selected out of total of 17,200 projects across India. Huh? And of course, the highest award of the state Teachers Award goes to Dr. Dhananjay Pandey, which has been announced just 2 days back. I think he deserves a big round of applause because all the effort he has put in. So that's a short about the achievements of the Adult Tinkering Lab Bilaspur. Thank you, sir. Thank you, sir. And I will now go to the ATL Gaya. Devendra Singh, can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, Devendra sir. Singh, can you hear me, sir? Yes, sir. Sir, you are the lab in charge of ATL Gaya. Now, can you introduce yourself and can you tell me that since your school is also a government school, do you see any adverse effect in the innovations? नहीं, Possible that आपका we माइक can- बंद है, आपका माइक बंद है, Devendra Singh, sir, your mic is म्यूट पे है। Okay, sir. Now I am audible. okay. Okay, sir. Thank you. Most welcome to all the GIST member presented here, and my colleague Dr. Dhananjay Pandey sir, and my senior most Srinivasan sir, and also a student here, and my principal also present here. Myself, Devendra Singh, ATL in charge of Jila School Gaya. Today I am here with my student to present some of the mind-blowing projects made here from the start out of ATL Lab 2017 to 2020. All the students have been very participating and creative from the start. But according to Dhananjay sir question raised here, how can you manage your school is totally government school? Okay, sir. In government school, not only government school, this school is from the Gaya district. This is the aspirational district, and a student coming from the poor backgrounds. However, we have no problem because a student is poor, but their mind be the very, very rich. And on this basis, we deciding here, we made everything, but all requirement fulfilling by our principal, and here lab, original lab and old lab. That means a student be creative. So our student using the Jugaad system. But at one thing point, the SEO not be the marketable product. एक समय ऐसा आता है कि हमारे बच्चे वहां तक पहुंच करके पेटेंट तक पहुंचते हैं, उसके बाद स्टार्टअप नहीं मिलता है। हमारे लैब में भी ऐसे 4 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 2 पेटेंट तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्टार्टअप नहीं मिल रहा है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या का यहाँ पर आकर के हमारी चाह वहां राह वाली कंसेप्ट भी फेल्योर हो जाती है। और हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे थोड़े रीच होते तो शायद स्टार्टअप इनको मिल पाता। ये हमारे लिए एक परेशानी है। बट इसके बावजूद भी हमारे लैब से भी बच्चे 2017 to 2020 now this year also
they competing 3 ATL marathon projects. So I think there is no problem about the student side, but financially we have suffering here. So थैंक यू Thank you, sir. देवेंद्र सर। हम बात करेंगे और भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में, जब देखेंगे लाइव बच्चे देंगे तो विल नो मोर अबाउट इट। ओके, सो बिकॉज ऑफ द sir, शॉर्टेज thank ऑफ टाइम वी हैव टू डू इट फास्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट इज अ वेरी गुड दिस थिंग। सो okay, या, sir. Sir, now we will go to the presentation, and the first presentation of this lab is Moksha. Sir, can you describe in the single words or in a single sentence the Moksha, and then we will go to the our students. well, I'll just share the screen also for the benefit of all the viewers who will see, because I just written a gist about what is Moksha all about, and in the meanwhile I'll also tell is what is Moksha all about. It's basically, okay, moksha is basically what these boys have seen is that the body ashes of the dead bodies are being immersed in the river Arpa, which is the only river here in this thing, as per the Hindu rituals. And these ashes have been polluting the river very badly. So they wanted to have a solution about it. So what they said ki the solution is to convert this body ash into highly productive manure without hurting the sentiments of the people. So that was the basic aim, and the team consists of Archit Modi and Aditi Srivas. So we'll directly go to the team and see as to how they have done this and how could they achieve and what are the results and how can they prove that. So shall we go with the team? Okay, thank you, sir. Now over to Archit Modi and Aditya Sarvas, team number one, ATL Bilaspur, team number one, ATL Bilaspur. नमस्कार, मेरा नाम आदित्य श्रीवास है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम अर्चित मोदी है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हम सब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे लैब का नाम डॉक्टर कलाम साइंस क्लब है। हमारे इस प्रोडक्ट का नाम मोक्शा है। हमारा यह प्रोडक्ट बनाने का मेन कारण यह था कि जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमें रास्ते में एक नदी पड़ती है जो कि दिन प्रतिदिन गंदी और दलदलित होती जा रही है, और जो लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं उसे त्वचा रोग जैसी कई बीमारियां हो जा रही है। इस समस्या का कारण जानने के लिए हमने कुछ लोगों से पूछताछ की, तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि उस नदी के पास में ही एक शमशान घाट है। तो हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को जलाकर उसके राख को नदी में बहा देते हैं, जिससे नदी दूषित होती है। इन समस्या को देखते हुए हमने यह प्रोडक्ट को बनाया है। यह हमने इसे बनाते समय 3 बातों का भी ध्यान रखा है कि यह जो पहला हिंदू धर्म का नियम है उसका अपमान ना हो, और जो नदी है वह भी दूषित ना हो, और जो राख है उसका भी हम किसी चीज में उपयोग कर सकें। हमने इस प्रोडक्ट को पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है ताकि इसको बनाने में ज्यादा एक्सपेंस ना आए। हमने इसको बनाने के लिए 2 डिब्बों का प्रयोग किया है। दोनों के बीच में 1 इंच का गैप रखा है और उस 1 इंच के गैप में हमने एलम डाला है। इसके चारों साइड हमने फिल्टर लगाया है। सर गिर गया सर। हमने चारों साइड फिल्टर लगाया है और हमने इसके चारों साइड होल्स रखे हैं जिससे पानी अंदर बाहर आ जा सके। हम पहले राख को नॉर्मली पानी में डालने की जगह हम पहले राख को इस डिब्बे के अंदर डालेंगे, फिर इस डिब्बे को पानी के अंदर डालेंगे। पानी छेदों से अंदर आएगा, एलम साथ प्रक्रिया करके और फिल्टर से साफ हो जाएगा और राख को जाके ठंडा कर देगा। हिंदू धर्म के हिसाब से जब राख ठंडी हो जाएगी पानी से मिलके तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ समय बाद जब राख ठंडी हो चुकी होगी हम इस डिब्बे को पानी से बाहर निकालेंगे। पानी फिर से एलम्स और फिल्टर से प्रक्रिया करके बाहर आएगा, जिससे पानी पूर्ण तरह स्वच्छ हो जाएगा। हमने फिर राख की टेस्टिंग करी तो हमें ये पता चला राख में 47.5% फॉस्फेट होता है जो कि खाद होता है। हमने इसको खाद की तरह उपयोग करके देखा, जितनी हमको राख मिलेगी हम उसमें उतना ही सॉइल मिलाएंगे, उसको खाद की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। हमने 200 से 250 बॉडीज पे इसकी टेस्टिंग करी है, हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। और जब हमने उसको खाद बना के पेड़ उगाया तो हमें ये पता चला कि जो इस खाद को हम यूज करके पेड़ उगा रहे हैं वो दूसरे पेड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे लाइफ स्पेन तक चल रहे हैं। हम भी फार्मर्स को ये 50 ग्राम्स के बॉक्सेस 250 ग्राम्स के बॉक्सेस में सप्लाई कर रहे हैं 50 रुपीज में। हमने उनसे रिव्यूज लिए तो हमें ये पता चला, उन्होंने हमको बताया ये बहुत ही अच्छा मैन्योर है, वो उसको जरूर खरीदना चाहेंगे जब ये मार्केट में आ जाएगा पूरी तरीके से। और हम इस मोक्षा प्रोजेक्ट में हम मरने के बाद भी नया जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद। Thank you very much.
प्रफुल्ल सर, आप कुछ बोलेंगे? If you'd like to say something? No, please go ahead. I think it was amazing. ये जो पूरा concept है. But please go ahead. Let me not interrupt. Okay, okay. नहीं, इसमें Okay, डॉक्टर। इसमें प्रफुल्ल जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी डेथ बॉडी को लेके जब शमशान जाते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं, हम उसमें एक डिक्लेरेशन और ले लें तो दैट विल बिकम नोबडी कैन चैलेंज और एनीथिंग। दिस इज ए वंडरफुल आइडिया। एक नीचे लाइन आ जाएगी कि यदि मेरी इस ऐश को यदि यूज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो देन इट डजंट बिकम लीगली, इट विल टेक ए शेप। That's a great idea. That's a great idea, Ashwin ji. सही, ये जिस तरह से Yeah, we had, organ donation करते हैं. But completely agree. Please go ahead, Captain Srinivas. yeah. I think they have been already doing that. They're taking an undertaking from the this thing. Okay, Dr. नहीं, मेरा मतलब श्रीनिवास जी, इसमें क्या था, वहाँ पे जो कलेक्टर होगा या कमिश्नर होगा, आप उससे बात करके मैंडेट करा सकते हो, जितने भी वहाँ पे मोक्षधाम है उनमें नीचे लाइन लिखी जाएगी, इन बच्चों को भागना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। जी। सर आदरणीय सर, हमने इसमें कम से कम 200 बॉडीज को कर चुके हैं ये काम जो आप कह रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप कर रहे हो, सिस्टम का पार्ट बनाओ किसी को। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि हमारे देश में दिक्कत यही है कि हम इंडिविजुअल डिपेंडेंट है, सिस्टम ड्रिवन नहीं है, हमें सिस्टम में डालना है। I am agree with the sir. I am agree with the sir, because when it become the part of the system, it become very useful and very clear for the person. Process And yes, sir. Thank you, sir. Point taken, sir. Point taken, sir. Thank you very much. Yeah, Dr. Dhananjay. Now we will go to our next project, team number 2, Atal Krishi Mitra. Sir Srinivas sir, give a brief explanation of Atal Krishi Mitra. Okay, let me again share my screen because that will be more clear for the viewers. Yeah, so this is Atal Krishi Mitra. Basically, when they started this project, they wanted to devise a all-in-one solution for the poor farmers. They've taken into consideration जो poor farmers होते हैं, they're not able to spend much money for the tractors and all those mechanized equipment. So they wanted to have an all-in-one solution for the poor farmers. And with that as an intention, they started this. And the salient features of this particular project is that it can be operated at any season, at any by anyone. It is almost maintenance free. And also it can work on solar batteries also and provide energy to the robot which is there, which we will see. And it can be controlled by mobile also. It is able to, it is capable of plowing 1 acre of land in 5 hours. That's what they had tested. And it will reduce the manual labor of the farmers and increase the productivity. It can plow the fields, irrigate the land, spray pesticides, harvest the crop, scrub the land, and will also transport the crop in a limited version. And in all probability, this is a boon to the small scale farmers who doesn't have much of the money. So that's the thing. And the team here consists of Tarun Maitri, Anurag Kashyap, and Monish Dhruv. Over to the team. So over to the team number 2, Tarun Maitri, Anurag Kashyap, Monish Dhruv, and their mentors, Dr. Raghavan Gauraha. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. नमस्कार, मेरा नाम तरुण मैत्री है, मैं कक्षा 11वीं हूँ। मेरा नाम मोहित जी, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम अनुराग कश्यप है, मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। हम सब डॉक्टर कलाम साइंस क्लब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम अटल कृषि मित्र है। जो छोटे किसान होते हैं वे आज भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। उन्हें पारंपरिक खेती करने में बहुत सारी तकलीफें होती है। वे आधुनिक खेती करना तो चाहते हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे आधुनिक खेती कर सकें। वे आधुनिक खेती करने के लिए जब बैंक से कर्ज लेते हैं तो हार्वेस्टर, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, जिनकी लागत तो अधिक है पर उनसे होने वाला मुनाफा बहुत कम है। मुनाफा कम होने के कारण वह बैंक के कर्ज को नहीं चुका पाता और वह असामाजिक कार्य कर बैठता है। इसी समस्या को देखते हुए हमने यह अटल कृषि मित्र बनाया है। यह हमारा मास्टर रोबोट है और यह हमारा स्लो रोबोट है। मास्टर रोबोट में हमने कटर लगाया है जो फसल काटने का कार्य करेगा। इसे हम खेत के हाइट के अनुसार ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हम कटर को निकालकर रबड़ लगा सकते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य करेगा।
इसमें हमने हल लगाया जो खेत की जुताई करेगा। ये सीडर है, इसमें से बीज बुआई का कार्य होते रहेगा। ये क्यारियां बनाने का कार्य करेगा। ये बेलन है जो मिट्टी को समतल करने का कार्य करेगा। इस टैंक में हम खाद, पानी या कीटनाशक दवाइयां रखकर छिड़काव कर सकते हैं। इसे हम सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी के जरिए भी चला सकते हैं। ट्रैक्टर्स गीली मिट्टी में फंस जाते हैं, तो हमने इस समस्या को देखते हुए हमने यह चैन बनाया है। यह आर्मी टैंक की भांति आसानी से गीली मिट्टी में भी चल सकते हैं। इसका रिमोट हमने खुद बनाया है, जिसे किसान स्वयं खोलकर खुद रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मेरे सहपाठी ने आपको बताया, ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बीटा वर्जन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आगे की ओर एक कटर लगा हुआ है जो कि फसल को काटने का कार्य करेगा, और इसके ठीक ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 टैंक हैं, जिसमें हम पहले में खाद रखेंगे, दूसरे में बीज और तीसरे में पानी। और यहाँ ठीक यहाँ नीचे की ओर एक हल लगा हुआ है जो खेत की जुताई का कार्य करेगा, और यहाँ पर एक अटैचमेंट लगा हुआ है जो कि खेत को समतल करने का कार्य करेगा। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 3 पाइप हैं, जो कि पहले पाइप से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होगा, दूसरे पाइप से सिंचाई के लिए पानी, और तीसरे पाइप से हम बीज बोने का कार्य करेंगे। हमने पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 20 सर्वे किए, और हमने देखा, हमने किसानों की राय ली, और किसानों का यह कहना था कि हमारा यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो जोताई की या फिर और चीजों की दूसरी मशीनें होती हैं, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और किसान उसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो हमारी मशीन है, ये कम दाम में सब कार्य करके देती है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जैसे ही मार्केट में आएगी वो इसे जरूर लेना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you, children. That was a splendid presentation and a good explanation. I think keeping in view the standard of the classes, what they are studying, and they've done a good explanation. Yeah, Dr. Dhananjay, what is the next product? Now we will go to the next product, powerless inverter. Sir, please explain about this product, powerless inverter. Just 1 minute. What is this powerless inverter? I'm not able to understand. You are talking about inverter and you are telling it's powerless. Yes. How can this be? That is the point. That is the point which the students have been working on this project. So please explain. Okay. So what is this powerless inverter is all about? It is to produce electricity using magnetic field. So this particular inverter has been designed to produce electricity using the magnetic field, and it actually produces 220 volts and 5 amperes. And this can be used as an inverter when electricity goes. And this is particularly important in the villages in India because there is hardly any electricity there, and electricity cuts are too huge. So keeping that in view, these children have done this project. Let's see the project that you will be able to appreciate it more. And the team here is Ashish Mable and Rajiv Bharadwaj. Over to the team. Team number three are Archit Modi and Aditya Srivas. मेरा नाम राजू भारद्वाज। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयास तस्कर। नमस्कार, मेरा नाम आशीष पारवाल, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हमारा प्रोजेक्ट नाम पावरलेस स्टेबलाइजर है। जब भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कम रहती है या तो कटौती रहती है। इन सभी को देखते हुए हमने पावरलेस स्टेबलाइजर बनाया है जो बिना इनपुट के आउटपुट देती है। जैसे कि इसको हमें आत्मनिर्भर इन्वर्टर कह सकते हैं, और जो मार्केट में उपलब्ध है वो इन्वर्टर बिना इनपुट के आउटपुट नहीं देती है। पहले इनपुट लेती है या उसे स्टोर करके रखती है, उसके बाद वो आउटपुट देती है। और ये जो इन्वर्टर है ये बिना इनपुट का आउट देती है, अर्थात इसमें स्टोर करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको आत्मनिर्भर कह सकते हैं। जैसा कि ये आत्मनिर्भर के साथ साथ ही हमें 75% ऊर्जा एनर्जी, विद्युत एनर्जी देने में सक्षम है। बाकी 25% कोई स्टूड के लिए यूज करती हैं। और इसके अलावा इसे विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो ये एक धड़कन की तरह काम करती है। जैसे कि कोई रोबोट में इसको फिट कर दिया जाए तो उस रोबोट को आजीवन तक के चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम ही लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट के लिए लेते हैं और 1 मिनट के लिए अंदर रोकते हैं और 1 मिनट के बाद उसको बाहर छोड़ते हैं। वैसे इसका जो
रोबोट का बैटरी पिकअप रहेगा तो 1 घंटे का रहता है, तो 1 घंटे के बाद ये फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको चार्ज कर लेगा और फिर बंद हो जाएगा। जैसा कि वो रोबोट भी आत्मनिर्भर रहेगा। अगर ये आत्मनिर्भर के साथ साथ ही हमें 75% तक की एनर्जी दे सकता है। और इसमें लगने वाली वस्तुएं हैं अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डिवाइस, बैटरी, जो थोड़ी 12 वोल्ट की है, उसको स्टार्ट करने के लिए लगाया गया है बैटरी, और एक डीसी मोटर भी एक गियर के माध्यम से अल्टरनेटर में जोड़ा गया है। जैसा कि गियर के माध्यम से अल्टरनेटर में जोड़ा गया है, जो इसको स्टार्ट करने के लिए सहायता करती है। जैसा कि हमने इन सभी महिला और हैंडीकैप लोगों को देखते हुए इसमें एक बैटरी लगाई है, ताकि एक बटन के माध्यम से स्टार्ट हो जाए। यदि इसको एक रस्सी के माध्यम से खींचा जाए तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा, तब इसको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी जैसे कि मेरे सहपाठी ने आपको ये बताया कि ये बिना किसी चीज से चल सकता है, तो हम इसके 2 फायदे हैं। पहला, इससे प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, डीजल, पेट्रोल ये सबसे बचत हो जाएगी। पहला वाक्य है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता बाकी जनरेटर जैसे, और इससे हम यूजफुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये मार्केट में आएगा तो ये लो कॉस्ट का रहेगा। ठीक, और ये अपना प्रोजेक्ट अच्छा है और इसे स्टार्ट करके हम दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको ये अभी दिखाया। यह लगातार 5 से 6 घंटे चलने में सक्षम है। उसके बाद 1 घंटे बंद करने के बाद फिर इसको उतने टाइम तक के चलाया जा सकता है। यदि इसकी फीचर्स देखी जाए तो इसको जी धन्यवाद। Thank you very much, children. That was a splendid presentation. And Dr. Dhananjay Pandya, what is the next thing we have? So next thing is a teaching device or a mathematical board. Please explain about this mathematical board, why we have made and why you have mentored this mathematical board. Well, before going into the mathematical, this is going to be a very, very good presentation, because what we have seen is बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ा भय होता है क्लास 10th में आने के बाद मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स का डर इसलिए रहता है लोगों को, बच्चों को, क्योंकि दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। सेकेंड इज their innate creative mind is not able to catch what the teacher is teaching on the blackboard and the whiteboard, whatever it is. So if you can do something activity based, then it goes, the perception and the grasping of the children becomes more. So what they have done is, the idea was to bring that fear out of the children's mind about mathematics, and the solution what they have brought is just marvelous. You will see that each one board itself can solve almost 250 plus problems, which includes of theorems, problems, geometry, mensuration, arithmetic and all. So let's go straight into the team. Let's go straight to the team and see how they're solving the problems and how these are going to benefit the society or to the children. Over to Tarun Mishra and Archit Modi, who are again the team for this particular mathematical board. Team for Archit Modi, Tarun Mishra and Pankaj Kewat. Over to you. नमस्ते, मेरा नाम तरुण मिश्रा है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र। मेरा नाम अर्चित मोदी है, कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम पंकज केवट है, मैं कक्षा 9वीं का। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स बोर्ड। हम हमेशा अलग अलग जगह जाते हैं और सर्वे करते रहते हैं कि किसको क्या कठिनाई आ रही है। एक बार हम छात्रों के बीच में गए और पता लगाने का प्रयास किया कि कौन से छात्रों को कौन सा विषय में सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही है। उनमें से अधिकतर छात्रों ने हमको ये बताया उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत कठिनाई आ रही है। जब हम उनसे उस कारण पूछा, उन्होंने हमको ये बताया कि टीचर उनको थ्योरेटिकल पढ़ा देता है, वो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा पाता क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, और उसी थ्योरेटिकल को रट के चले जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं, जिनके कारण उनके कम अंक आते हैं क्योंकि वो एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। फिर हमने कुछ साल पहले के बोर्ड्स के रिजल्ट देखे और पता लगाया कि मैथ से बहुत सारे बच्चों के बहुत कम अंक आए हैं। जब हम उनसे पूछे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने भी हमको यही बताया कि वो रट के चले जाते हैं, उनके कम अंक आते हैं क्योंकि टीचर उनको प्रैक्टिकल नहीं समझा पाते। इसमें टीचर की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि अपने पास वैसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। उसी चीज को देखते हुए हमने मैथमेटिक्स बोर्ड का निर्माण किया है।
हम इनोवेटिव क्यों हैं? हम इनोवेटिव इसलिए हैं क्योंकि हमने इस मैथमेटिक्स बोर्ड का निर्माण किया है। हमने इसको बहुत ही लो कॉस्ट में बनाया है ताकि इसको हर कोई अफोर्ड कर सके। ये बहुत लो मेंटेनेंस है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। टीचर्स को मल्टीपल क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें क्लास 5 से क्लास 10 तक के सभी मैथ्स के थ्योरम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की जानकारी मेरे मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्यूचर में कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी तो हमने इसमें खिले और रबर लगाई है, पर हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करने की कर सके। इसके प्रॉपर्टीज हैं, इस पे हम अंक गणित, बीज गणित, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और गणित के सारे प्रमेयों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ वृत्त के प्रमेयों को हल करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त के केंद्र के कोण, परिधि के कोण भी यहाँ दिख रहे हैं आपको, और वृत्त के केंद्र का कोण और परिधि के केंद्र के कोण, परिधि के कोण केंद्र के कोण के दुगने होते हैं, आधे होते हैं। वृत्त के केंद्र के कोण को जब हम नापेंगे तो आइए हम देखते हैं वृत्त के केंद्र का कोण कितना है। वृत्त के केंद्र का कोण अर्चित बताइए कितना है? 90 डिग्री। देख सकते हैं आप वृत्त के केंद्र का कोण 90 डिग्री। आइए अब हम वृत्त के परिधि के कोण को नापेंगे। वृत्त के परिधि के कोण इसे भी देख सकते हैं आप, कितने अंश का है ये बताइए? 90 डिग्री। वृत्त के परिधि के कोण 45 डिग्री। 45 डिग्री। और परिधि के कोण को भी जब हम नापेंगे तो सभी कोण को जब हम नापेंगे तो सभी कोण 45 अंश का होगा। देख सकते हैं आप, इससे सिद्ध होता है कि वृत्त के केंद्र का कोण परिधि के सारे कोण के दुगना होता है। इसमें हम जितने वृत्त के भी जितने कोण हैं उसको हम आसानी से बता सकते हैं। आइए अब हम इसके अग्रभाग पे जाते हैं। मैं आपको इसमें एक प्रमेय बताता हूँ जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें इस प्रकार एक त्रिभुज बनाएंगे। अब हम इसकी एक भुजा के बराबर एक रेखा लेंगे इस प्रकार। अब हम देखेंगे कि यह इन दोनों को बराबर समान रूप से विभाजित करता है कि नहीं। इधर देखिए ये अभी 10 है, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इस तरफ का भी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5/5। इससे यह साबित होता है कि यह रेखा त्रिभुज को समान रूप से विभाजित करती है। आइए हम एक और इसका देखते हैं करके। इसमें भी देख लिया, इसमें भी 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7। इससे यह सिद्ध होता है कि यह रेखा त्रिभुज के दोनों भागों को समान रूप से विभाजित करती है। और यही थेल्स प्रमेय है। धन्यवाद। अब हम कुछ ज्योमेट्री के थ्योरम्स को प्रूव करके देखते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी 11 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी 11 सेंटीमीटर आ रहा है। इनके जो बीच से गया है इनका ट्रांसवर्सल है। अब हम ये वाले एंगल का मेजर देखते हैं। भैया बताओ तो कितने? 45। ये एंगल का मेजर 45 डिग्री है। अब हम ये वाले एंगल का मेजरमेंट देखते हैं। ये भी 45। ये भी 45 डिग्री है। जिससे ये साबित होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं ये 45 डिग्री है। अब हम ये वाला एंगल देखते हैं कितना आ रहा है। 45। ये भी 45 आ रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आगे की जानकारी आपको हमारे सर देंगे। I would like to invite Dr. Dhananjay Pandey sir because he is the brain behind this. अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आई थिंक उनके एक्सप्लेनेशन के बिना कोई एक थ्योरम को ये अधूरा हो जाएगा। सो डॉक्टर धनंजय पांडे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सर ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट बनाया गया था ये एक टीचिंग एड है, ये स्टूडेंट्स के ध्यान में रख के बनाया गया था। जब हम एज ए टीचर जब क्लास जाते हैं तो सबसे बड़ा बोझिल सब्जेक्ट मैथ्स ही लगता है, और मैथ्स को क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स नहीं की जाती है, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है बच्चों का अपना सब्जेक्ट नहीं बनता है।
हम चाहते हैं कि यह सब्जेक्ट बने और इसको आगे ले चलें। तो ये जो पहला भाग है, हम अलजेब्रा, अरिथमेटिक, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और पैथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सभी प्रकार की चीजें कर सकते हैं। इस जो पार्ट है इसमें हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ये सभी जितने प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं। पीछे में हम टेंजेंट, सेकेंड्स, आपको स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट्स, हम सभी कर सकते हैं। इन ऑल हम देखते हैं कि ये कम से कम 250 प्लस फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहली बात है, जब पहले हम बनाए थे तो ये एक बोर्ड बनाए थे। ये बोर्ड बनाने के बाद जब और ये न्यू बोर्ड इसलिए बनाया गया ताकि बोर्ड को मार्केट में देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टीचर के क्लास खत्म हो जाने के बाद ये दूसरे क्लास में शिफ्ट हो सकता है और कोई भी टॉपिक पढ़ाए वो उस टॉपिक को कवर कर सकता है। ये जो बोर्ड है क्लास 5th से लेकर के क्लास 10 तक लगभग सभी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और क्लास 11th के एपी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धनंजय पांडे। एंड मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि इन्होंने जैसे पांडे सर ने दिखाया था कि पहले उन्होंने एक छोटा सा सैम्पल बोर्ड बनाया था, एंड वी हैव बीन ट्राइंग इट फॉर द लास्ट 1 ईयर टू टेक इट टू द स्कूल्स, बिकॉज बच्चे का इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंट्रीब्यूटेड आवरसेल्व्स। अभी जो उन्होंने एक बोर्ड दिखाया वैसे हमने 4 बोर्ड बनाए हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू टेक इट टू द स्कूल्स, गिव द डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन गिव इट टू द स्कूल्स एज अ डोनेशन। एंड या दैट्स आवर प्लान, बिकॉज अगर हमने कोई भी चीज़ सोसाइटी के लिए बनाया, अगर सोसाइटी के लिए यूज़ नहीं हो पाता एंड इट्स देयर इन द लैब, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी उद्देश्य से हमने बोला अभी 4 बोर्ड्स बनाया, वी विल गो टू 4 डिफरेंट स्कूल्स एंड गिव इट टू द चिल्ड्रन, टीच देम एज टू हाउ दे कैन सॉल्व, एंड वी होप that we are going to spread it to all the schools across Bilaspur. That's our ultimate goal. Well, so अभी मेरे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, गौरवा सर। सो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आपने जब इस लैब को इतना ज़्यादा ये मिला है, प्रशंसा मिली है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली इन्होंने किया है, तो आपको बहुत सारे अड़चने तो आई होंगी, तो आपने इन सबको कैसे आपने ये किया? थैंक यू सर। अड़चने तो प्रशासनिक रूप पर आती ही हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अलग से शिक्षक के अलावा अलग से कोई कार्य करना है तो इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो इसमें डेडिकेटेड टीचर्स और डेडिकेटेड स्टूडेंट का तलाश थी। सबसे पहले मेरी उसका जो है पूर्ति धनंजय पांडे जी के रूप में हुई, जो शिक्षक के रूप में मुझे मिल गए। और उसके पश्चात जो दिक्कतें आई स्टूडेंट की, तो हमने स्टूडेंट के लिए बिल्कुल यहाँ पर फ्री रखा कि वो बच्चे जो अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं, केवल वही बच्चों को ही हमने यहाँ पर एंट्री दी। हमने किसी प्रशासनिक आदेश के तहत किसी बच्चे के लिए कंपल्सन नहीं किया। यदि कंपल्सन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको कोई सफलता नहीं मिलती, मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि अन्य बहुत सारी योजनाएं रहती है शासन की जिन्हें हम फोर्सफुली करवाने का प्रयास करते हैं और उसमें हमको उसकी अपेक्षित सफलताएं नहीं मिलती है। तो इसमें वही बच्चे जुड़े हुए हैं जो अपने स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी आप देखिए, अभी हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब इस 8 बजे किसी प्रशासनिक आदेश से मैं बच्चों को नहीं बुला सकता, उनके पेरेंट भी मेरा विरोध करेंगे, मेरे प्रशासनिक अधिकारी भी मेरा शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चे आए हुए हैं, ये बच्चे सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं। तो इसी प्रकार की बात है, डेडिकेटेड बच्चों का चुनाव और डेडिकेटेड टीचर का चुनाव, ये दोनों हो जाने के बाद मेरे लिए काम बहुत ही आसान हो गया। जहाँ तक प्रशासनिक और छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उसे मैं अपनी व्यक्तिगत संबंधों के चलते भी कई जगह हल करता हूँ, कई जगह मेरे व्यक्तिगत संपर्क काम आ जाते हैं, कई जगह थोड़ी सी और दिक्कतें आती हैं, उन्हें देखते हैं, जैसे जैसे दिक्कतें आती हैं उनको उस स्तर पर हल किया जाता है। लेकिन मेरा सबसे काम आसान केवल समर्पित बच्चे और शिक्षकों को मिल जाने के कारण, और मेंटर जैसे सर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग मिल गए मुझे समर्पित समाज से, तो ये काम बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक दैट स्पीक्स ऑल। उन्होंने सब कुछ एक छोटे से समय में सब कुछ बता दिया। डेडिकेशन फ्रॉम द टीम, जो बच्चे हैं, प्लस द लीडरशिप, ऑल दिस मैटर्स। एंड हमारे बच्चों में बहुत सारा हुनर है, बहुत सारी इनोवेशंस है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है, जो ये यहाँ पे हमने अटल टिंकरिंग लैब बिलासपुर में दिया है। नाउ लेट मी टेक यू ओवर टू अटल टिंकरिंग लैब गया। देवेंद्र सर, ओवर टू यू, आपके नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स के लिए।
मैं Okay, sir, आपको thank you. पहला प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करता हूं आपका. ओके, देन Yes, यू sir, कैन yes. गो अहेड. Okay, sir. Yes, please. All Okay, you, sir. yours. Okay, thank you, sir. One of the leading project made here the air water generator. Through this project model, air is used to generate water, and this model is quite helpful for the problem of water scarcity. The project AWG is the process of patenting, and the project is the part of the Jal Jeevan Haryali. This is the part of the Jal Jeevan Haryali. They have the three projects. Now over to my student ATL Gaya, one project giving Deepak, PK Atul, Shreya and Prem Sagar. First of all, PK Atul. We are not able to see you. Okay, okay. आप सभी को मेरा प्रणाम. I am Pawan Kumar, my friend Deepak Kumar. We are from Maharashtra. पवन आप, हाँ ठीक है, carry on. The problem of water in the world is serious. The way water is being consumed due to आपकी आवाज क्लियर नहीं है. आप दिख नहीं रहे हो, क्लियर भी नहीं है आवाज. आपके माइक्स म्यूट दिख रहे हैं. एटीएल गया, आपके दोनों माइक म्यूट हैं. एक माइक को अनम्यूट कीजिए, दोनों को और एक को म्यूट रहने दीजिए. श्रीनिवास जी, अगर आप नहीं, मेरे पास कंट्रोल. हाँ अभी ठीक है. आप सभी को मेरा प्रणाम. I am Pawan Kumar Atul with my friend Deepak Kumar. We are from Palash 2 Jila School, Gaya, Bihar. Today the problem of water in the world has become very serious. The way water is being consumed, due to which we will have to face many difficulties in future. How at present the problems of water are like we should consume 400 to 500 liters of water in a small family, but they do not spend so much and consume more than 800 to 900 liters of water, and it is not even concerned whether this water is becoming the waste. Keeping this in view, our team made a project which is named Jal Jeevan Haryali. उनको बोलो दूसरा माइक ऑफ करें. श्रीनिवास जी, डू यू थिंक यू कैन रिव्यू द प्रोजेक्ट? मैंने उनको म्यूट कर दिया है अभी बिकॉज़ इट्स टू मच एको. हाँ, टू मच ऑफ एको. यस. ओके, देवेंद्र सर एक बार और स्टार्ट करेंगे आप, बिकॉज बहुत इको आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आपकी आवाज नहीं आ रही है. शायद अब म्यूट पे होंगे. देवेंद्र सर फोन पे बात करो. वी नॉट एबल टू हियर यू. अनम्यूट करो बेटा अपने माइक को. Sir, now. हेलो. हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही. एक ही माइक ऑन करिएगा, दूसरा माइक ऑफ करिएगा. हाँ चालू करो. आप सभी को मेरा प्रणाम. I am Pawan Kumar Atul with my friend Deepak Kumar. We are from Palash 2 Jila School, Gaya, Bihar. Today the problem of water in the world has become very serious. The way water is being consumed, due to which we will have to face many difficulties in future. However, at present the problems of water are being faced, like we should consume 400 to 500 liters of water in a small family, but they do not spend so much and consume more than 800 to 900 liters of water, and it is not even conserved
Rather, this water is becoming the waste. Keeping this in view, our team made a project which is named Jal Jeevan Haryali. The solution to our problem is found from ATL lab. The solution of the problem can be done at home, as we will use 20 to 30 liters of water in a day for food and drink expenses in a family. But the water that we spend in the kitchen and bathroom, we will recycle them. They will be sent pure water to be used, and the water which we will be useful for the soil will be sent to that soil. The remaining water will be sent to that canal, river, pond, so that it continues to recycle, and rain water also be recycled, which will solve our water problem. अब हमारे आगे की क्रियाकलाप हमारे प्रेम सागर भैया बताएंगे. A very good evening to all the dignitaries present over here. This is Ms. Shreya Sinha, and he is my friend Prem Sagar. We are from Jila School Gaya, and we are here to represent our prototype air water generator. Coming to the problem statement, that why this idea came in our mind, we belong to a place like Gaya where the problem of water scarcity is quite acute. So we needed a solution that can solve the water scarcity problems of our city. And therefore, we decided to work on our prototype air water generator, that it converts moisture to pure drinking water. So what it does, that it has 3 sections. We are collecting the moisture, and then with the help of several devices like capacitor, compressor, cooling system, and fans, we are converting it into drinking pure water. Also, we have an attached purifier so that the water is fit for drinking. Other specifications will be mentioned by my friend Prem Sagar. इस मशीन में हमने कई तरह के उपकरण का उपयोग किया है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी, सक्शन पंप, कैपेसिटर, एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग एंड एयर ऑब्जर्वर। इस मशीन का फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क क्या है कि हमारा कंप्रेसर के थ्रू पाइप जो है कंडेंसर के साथ और कैपिलरी के साथ जुड़ा हुआ, कैपिलरी जो हमारा कूलिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, और कूलिंग सिस्टम में जैसे ही कैपिलरी जुड़ा हुआ होता है और कूलिंग सिस्टम में जैसे ही कैपिलरी राउंड राउंड करके हम करते हैं, कॉइल को तैयार करते हैं, तो ये जो है एयर में जितने भी मॉइस्चर अवेलेबल है वो इसको कैप्चर करता है और मॉइस्चर को कैप्चर कर ये वाटर में कन्वर्ट करता है और वाटर में कन्वर्ट करके हम इसे स्टोर करते हैं। जिस तरह से हमने एक स्टोरेज टैंक बनाया है और साथ ही स्टोर करने के बाद हम जो इसका नेचुरल प्यूरिफायर के थ्रू हम इसे प्यूरिफाई करते हैं। जो नेचुरल प्यूरिफायर जो है चारकोल सैंड की हेल्प से मैंने बनाया था और उस प्यूरिफाई करने के बाद हम उसे डेली लाइफ में पीने योग्य यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी मटेरियल को हमने आपको बताया, जैसे कंप्रेसर, कैपेसिटर, कंडेंसर, इन सभी मटेरियल्स को मैंने कबाड़ से उठाया है। हमने इसे कबाड़ से उठाया और कई जगह से हमने लाया और हमने अपने घर से भी एक फ्रिज था, उसमें से मैंने एक कैपेसिटर निकाला, कंडेंसर निकाला और हमने एक कंप्रेसर निकाला और मैंने कबाड़ से पीवीसी पाइप को खरीदकर इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। आगे की प्रॉब्लम को दीपक बताएगा। यह प्रोजेक्ट इस प्रकार काम करेगा कि बारिश का पानी और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला पानी को पाइप के जरिए एक जगह एकत्रित कर चारकोल की सहायता से वाटर प्यूरिफाई किया जाएगा और उसे पुनः प्रयोग होने के लिए भेज दिया जाएगा और बचा हुआ पानी खेती के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि हरियाली के साथ साथ भूमि का जल स्तर बना रहे और जो वेस्ट वाटर है जिसमें अम्ल क्षार लवण मिला हुआ है तथा उदासीनीकरण हुआ जल को नदियों और नहरों में भेज दिया जाएगा ताकि हरियाली के साथ साथ जल का स्तर बना रहे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। जल है तो जीवन है। अगर जल नहीं होंगे तो हरियाली नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी तो बारिशें नहीं होगी और हम अनाज का उत्पादन भी नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हम
जल की अहमियत को अब नहीं समझेंगे तो कब? अगर हम जल को सही से उपयोग करेंगे तो हमें जल के साथ साथ हरियाली भी मिलेगी और जल भी मिलेगा। और अब हमारे सहयोगी साथी और वर्णन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति कुमार है। मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम, ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमारे सहभागी ने बताया कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में स्वच्छता भी उतना ही उपयोगी है जितना जल का मात्रा। अगर हमारे आसपास में गंदगी रहेगी तो आसपास के जल ये सब भी दूषित हो जाएंगे, जिन्हें बचाने के लिए मैंने स्वच्छता के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। जो प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार काम करता है कि अगर इसके सामने कोई गंदगी आ जाए तो यह खुद ब खुद सेंस करके यह इंडिकेट कर देता है। यह इंडिकेट करके फिर इसे इंडिकेट करता है कि तुम उस कचरे को उठाओ। जो यह कचरे को नीचे जाकर उठा लेता है, फिर इसे पीछे की ओर रखे बॉक्स में रख फेंक देता है, जो कुछ इस प्रकार काम करता है। और जो पीछे के रखे बॉक्स में कचरा डाल देता है, जिससे हमारे आसपास की स्वच्छता बनी रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति आसपास या कचरे के डस्टबिन में नहीं डालता है कचरा, तो यह गाड़ी उस पर भी काम करती है, जो वहां पर जाकर कचरे को उठा लेगी। और इसमें इसका जो एक और मॉडल है, जो एक कचरे के डस्टबिन के पास लगा रहेगा। जो अगर कोई व्यक्ति जो डस्टबिन के बाहर कचरा फेंक देते हैं, सोचते हैं कि डस्टबिन में डालना क्यों जरूरी है, तो यह मशीन सेंसर खुद ब खुद सेंस करके वहां पर आसपास डस्टबिन में फेंके कचरे को पता लगा लेता है और इसकी सूचना नगर निगम को देता है, जिससे उस व्यक्ति की पिक्चर अपने सेंसर द्वारा क्लिक कर लेता है, जिससे उस व्यक्ति की फोटो को नगर निगम के पास भेज देता और उसके जो चालान कट जाता है, जिससे वह व्यक्ति को दोबारा उस गलती नहीं कर पाता है। धन्यवाद। Sir, any question about this project, sir? Srinivasan, sir. We will Come take to the the questions and ideas at the end of all the presentations. Last minute. Sorry, go ahead, Captain Srinivas. So we'll take the questions at the end. अभी एक और प्रोजेक्ट है क्या आपका? Sir, any question from? No, we'll take the questions at the end. आपके प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए? Second project, sir. Now so move on the second project, sir. Okay, yeah, sir. There are only, the latest leading project. Okay, sir. The latest leading project in our lab is soft robotic grippers. Recently, soft robotic has been a popular thing to learn within the student. Soft robotic is new to our school and student and showing keen interest by winning the competition in this field. Our student has won the most creative award. Now it is turn on the student present their project. Pratiksha Singh and Kunal Gautam, go ahead. Over to Pratiksha Singh, Kunal Gautam, ATL Gaya 2. Greetings to all the teachers and students present here. Today, I am Pratiksha Singh of Jila School Gaya, and today I am here to present my project on the topic of soft robotics. So, when we talk about robotics, then we usually think of that robots are made up of metals and like irons and all those things. But soft robotics is quite different. Though it is the subfield of robotics, but still it is quite different from all those robots that we usually see. So when we talk about soft robotics, so it is the subfield of robotics which deals with the construction of robots using soft materials like rubber, silicon, plastic, etc. These type of materials are very soft and they're also very flexible. And that's why these things are used to make soft robots.
So as we know that that this soft robots, like what's the function of this soft robots? So usually we can consider that soft robots is usually made for as a gripper form, and this is one of the major function of soft robots. But as not all the grippers are same, there are several kinds of grippers and they all work differently. For example, there are certain kinds of grippers that are quite small, and their grippers are used for surgeries. And there are other kind of grippers which are used in factories, and some other places where grippers are used are like the places where humans can't reach. For example, outer space and deep under the water. These places, soft robotics are quite helpful. So, in our school, in Jila school, soft robotics for students was started in December of 2020, and I was the one who was selected for this project to take part among the 10 students. And I would like to share one presentation of my project. So this is my design journal of my soft robotics project. So this is the main project. When we have started learning about soft robotics, then this is the model which we made, which we all of the 10 students have been provided kits, soft robotics starter kits, and this is what we have made from the kit. And this is the main model. It is totally autonomous, and as you can see the green part, this is the silicon part, and this is the main thing which is made in soft robotics. And as you can see here, that is it is able to pick up any type of toy or like any materials using the grippers. So these are one of the major main function of soft robotics, grippers. Now, so when we were given to create our own project, then I thought of the problem that we were facing in this our starter model. So I saw that these grippers were not able to pick up any small objects, probably due to their geometry. And I thought of creating a solution. So for that, I took inspiration from our human hand. And as we see the fingers, if like while using our fingers from different positions, it is able to grab anything of like the weight it can handle. It can easily grab those things. And the second inspiration I took is from octopus hand. As we see that octopus tentacles are quite flexible, and in that way octopus is able to pick up any object uh, with all its finangles. So these were my two inspirations, and then I created a design, my conceptual design, and this is the design which I created. And then this all are the string line, and here it is my initial project which I made using cardboard. So basically this consists of a resistor and the finangle, and whenever we put any object near the resistor, the finangle, which has a very sharp end, it goes under the object and then picks it up. And here is my final working of the project, like how it works. This is the one like which I created. Here. I will also like to show how my project works. Just a second. इससे दिखा नहीं।
So this is my project which I have made. This here is the resistor and here is the finagle. So like the function of my gripper is that it is able to pick up any object which has a plane surface or which is very of different geometries and also very small in shape. So my project can be used in the field of astronomy and also in different type of industries. And here is my project. This whole thing is based on this base. So now I will show how this works. So here is I have a sketch pen which has a very smooth, a very cylindrical surface, and I will pick it up with my gripper model. So here I have a nail. I have added this so that it can easily pick up any object of plane surface. So as you can see that here is the sketch pen. Now when I pull the string, the finagle just start going inward and it pushes the object towards the resistor. Then the resistor stops the further movement of an object, and when I pull the string, the finagle picks up the object, and this is how my project works. So that was all about my project. Thank you so much. Thank you very much, Devendra sir. That was marvelous, and I think it was so good. And with that, I think we come to an end to the thing, to the presentation of the project. And we are open for the questions. Kids are also ready from both ATL Gaya and ATL. हेलो सर, मेरा नाम कुणाल गौतम। हमारी समस्या जब हम किसी लैब में जब किसी एक जगह पर काम करते हैं तो जस्ट 1 मिनट हमें बार-बार किसी भी चीज को लेने जाना पड़ता है। अगर कोई चीज किसी जगह पर रखी है तो हमें उसे वहां जाकर लाना पड़ता है। यह हमारी समस्या थी जिससे हमारा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता था। इस पर हमने कुछ समय विचार करके हमने एक समाधान निकाला कि हमने एक ऐसा ग्रिपर हैंड, एक ऐसा रोबोटिक हैंड बनाया जो किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले आए। इसका हमने मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें हमने 4 फिंगर्स लगाए हैं। हमने 4 फिंगर्स लगाए हैं। यह बिल्कुल किसी भी चीज को चारों तरफ से पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और एक सही तरीके से उसे उठा लेता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पूरी तरह ये सक्षम है। इसमें हमने इसको हमने 2 तरह से डिजाइन किया। पहला कि ये हमारा प्रोजेक्ट किसी चीज को उठाएगा और वो भी यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। किसी चीज को उठाएगा, खुद जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को लाने के लिए बोलते हैं तो वहां जाएगा, उस चीज को सेंस करेगा और उसे उठाकर हमारे पास ले आएगा। या खुद से किसी चीज को उठाता है, बिल्कुल इस तरह। अब हमने 4 फिंगर्स लगाए जो कि खुद खुल जाते हैं और किसी चीज को उठा लेते हैं। इसमें कोई भी चीज बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। इसे हमने अगर आगे ऐसे और अच्छे से डिजाइन किया जाए तो यह और भी बड़ी चीजों को उठा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ 1 किलो तक के वजन वाली चीजों को ही उठा सकता है। इसमें कई तरह की चीजों को उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अगर कोई चीज यहाँ पर है तो ये पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लेता है। या यहाँ पर किसी कारण से काम नहीं कर रहा है पूरी सही तरह, तो यही था हमारा प्रोजेक्ट। देवेंद्र सर, आपके प्रोजेक्ट हो गए? Srinivas sir, here 2 project. Okay sir, now over to Srinivas sir. Okay, thank you very much, and congratulations guys. Both the projects have done a splendid thing, and it is very innovative, and at this particular age when you can do such projects, आपका फ्यूचर आप में देख सकते हैं। और इनफैक्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं।
So now over to for questions. All the teams be So, ready. Srinivas ji, there's the audience is brimming with ideas. Audience is has been messaging me and all that. First of all, congratulations to all the teams. आप लोगों के innovation देखकर ये soft robotics का काम है, ये मोक्षा काम है, सबके लिए मैं तालियां बजाता हूँ. Amazing thing. और जितने messages pour हो रहे हैं, ये आप लोगों को देख के लगता है कि भारत की दिशा भारत सही दिशा में जा रहा है. आप लोग आपके हाथ में हमारा फ्यूचर सुरक्षित है. तो बिफोर आई इनवाइट क्वेश्चंस एंड आई नो प्लीज गिव मी 1 मिनट. सबके कई आइडियाज हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक मिनट और दीजिए मुझे. मैं 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. पहले मैं प्रोफेसर तुषार शर्मा को बुलाना चाहता हूं, जो कि IIT बॉम्बे में विजिटिंग फैकल्टी हैं और IEEE के चेयर हैं यंग प्रोफेशनल सोसाइटी के. तुषार जी, इफ यू आर रेडी, would love to have your introduction and how you can support these students as well. नमस्ते प्रफुल्ल जी. थोड़ा एको आ रहा है आपके एंड से, आई थिंक. हेलो. हाँ, अब बोलिए. हाँ जी. तो सभी को नमस्ते. मेरा पहली बार मैंने ये इवेंट अटेंड किया और मेरे को प्रकाश झा जी ने लिंक भेजा था. मेरा परिचय, मैं अभी कैलिफोर्निया में रहता हूँ और मैं IIT बॉम्बे में, जैसे बताया, मैं वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ. मेरा रिसर्च टॉपिक 5G कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है. तो आप सभी का काम देख के बहुत अच्छा लगा. और एक IEEE एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है और उसकी जिनमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस को सॉल्व करने की, जैसे आप लोग ऑलरेडी दिखा रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में. और कोई भी स्टेम रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी है और आपको उसके डायरेक्शन में या उसको स्केल अप करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ प्रफुल्ल जी के थ्रू या प्रकाश जी, येलो जी के थ्रू, अगर आपको कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ डू रीच आउट टू मी. धन्यवाद. Thanks, Tushar ji. It's very exciting. So, Captain Srinivas, Dhananjay ji, please take note of this. अगर IEEE से कुछ समर्थन बन पाए तो तुषार जी can help facilitate that. और उसके साथ ही जिसके कुछ वॉलंटियर्स हैं, जिसकी ओर से फॉर्मल नहीं है, हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने मिलकर एक कंप्यूटर खरीदने की बात कही है. तो सारे लोगों को, दर्शकों को, कि अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि शायद लैब के बाहर भी जा सके और फील्ड पे भी यूज़ हो सके. तो अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना है तो आप प्लीज़ मुझसे रीच आउट कीजिए. मैं कैप्टन श्रीनिवास और धनंजय जी के साथ मिलकर उस कंप्यूटर को उस लैब के लिए उसको साकार करेंगे. वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है. आपको इतनी तालियां मत बजाइए, ये तो मतलब ये बच्चों ने जितना किया और आप लोग जितना कर रहे हैं उसके सामने कुछ नहीं है. नेक्स्ट मैं अनिल माथुर जी को बुलाना चाहता हूँ, जो कि इसरो से रिटायर्ड हैं और उनका एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है स्पेस गैलरीज का. अनिल जी, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज वीडियो और वो ऑन कीजिए. Yes, I am ready. प्लीज गो अहेड सर. आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ. ओके. जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया, लेट मी थैंक टू हिम फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी हियर. वी हैड इंटरेक्शन आई थिंक अबाउट 15 days बैक और सो. मैं अहमदाबाद में सेटल्ड हूँ और इसरो अहमदाबाद सेंटर से रिटायर हुआ हूँ. आई वर्क अबाउट 40 years एंड बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर. आई डिड माई BE and ME both from IIT Roorkee in 77. Okay. So after my retirement, I am doing lot of activities related with the space science and technology. Basically उसमें awareness programs में करता हूँ, छोटे बच्चों के स्कूलों में, कॉलेजों में, IITs में, conferences में, societies में. So I made different type of presentations related with space science and technology depending upon the audience. वो presentation में करता हूँ. तो purpose जो मेरा ये है basically कि बहुत सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड अच्छा काम कर रही हैं. दे आर सेंडिंग सो मैनी सैटेलाइट्स, सो मैनी रॉकेट्स. इंडिया में भी इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग सब जानते हैं कि भाई जब भी सैटेलाइट जाता है, सक्सेस होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं. बट पर्पज़ ये है कि जो हम ये सैटेलाइट किस लिए भेजते हैं और उससे हम लोग आगे क्या करते हैं, आम जनता को इसका क्या फ़ायदा है, तो उस अवेयरनेस को मैं लेके चल रहा हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू रीच द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री. तो इंडिया के आम आदमी को पता लगे कि भाई स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं.
अभी तक लोगों को वो चीज़ों के बारे में पता नहीं है सिंपल तरीके से. देयर आर सो मेनी हाउस वाइफ्स, दे आर एजुकेटेड बट दे देमसेल्व्स डोंट नो कि इसके कितने फ़ायदे हैं, हम कहाँ का यूज़ कर रहे हैं. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उसके. तो ये तो मेरा जो रिटायरमेंट के बाद एक पार्ट तो ये है. दूसरा मेरा ये मानना था कि जैसे बड़े बड़े साइंस म्यूज़ियम होते हैं, ऑल बिग सिटीज़ हैव ए साइंस म्यूज़ियम, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, लाइक दैट. ओके, बट जो इंडिया में जो है ब्रेन जो है रूरल एरियाज़ में वी हैव गॉट गुड ब्रेन्स. बच्चे बहुत होशियार हैं, अच्छा दिमाग है, बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है देखने के लिए. सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली, एनसीआर में हमारा एक मान लिया साइंस म्यूजियम है, या कहीं प्रगति मैदान में बहुत अच्छा नया स्पेस गैलरी, स्पेस म्यूजियम आने वाला है. इट विल टेक टाइम. बट आसपास के जो गांव के बच्चे हैं, यूपी के, हरियाणा के और राजस्थान के, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो लोग दिल्ली तक आएँ और वो म्यूज़ियम देख सकें, क्योंकि टाइम आने जाने में बहुत लगता है और दे ले टू गो कम इन ए बस और इट इज़ नॉट ईजी. तो मेरा मानना ये है कि इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्पेस साइंस गैलरी होनी चाहिए एज फार स्पेस साइंस इज कंसर्न. वैसे तो टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक छोटा म्यूजियम होना चाहिए जहाँ पे गांव के बच्चे आएँ और देखें. तो मेरा जो प्रपोजल ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेस साइंस गैलरी होनी चाहिए और उसके अंदर हमारे पास स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिटरेचर, मॉडल्स, बुक्स, वो सब वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे कि हम किसी एक लोकल गाइड को भी रख सकते हैं. कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको ट्रेन कर सकते हैं, तो ही कैन टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंस गैलरी. तो उस साइंस गैलरी को मेंटेन करने के लिए ही कैन पुट ए वेरी नॉमिनल फी. एक टिकट लगा सकता है 5-7 रुपये का, जिससे उसको भी थोड़ा एक रोजगार मिलेगा जो उसको संभालेगा. और उसके अंदर वो जो बच्चे स्कूल के आएंगे सैटरडे संडे को या वर्किंग डे वाले दिन, उनको वो बताया जाएगा कि मॉडल्स के जरिए में कि भाई सैटेलाइट कैसे होता है, सैटेलाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सैटेलाइट का क्या साइज़ होता है, कि देखने में कैसा लगता है, रॉकेट कैसा होता है, रॉकेट का एक स्केल मॉडल वहाँ रखेंगे. अपने जो दूसरे चीज़ें हैं स्पेस से रिलेटेड, उन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ बच्चों को दी जाए. काफ़ी राइटर्स हैं इंडिया में ऐसे हैं, इसरो के भी और बाहर के भी, जिन्होंने स्पेस साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं. रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी है, हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में और दूसरे तेलुगु वगैरह में भी लिखी है. तो उन बुक्स का एक एक कॉपी एटलीस्ट उसको हमें स्पेस साइंस गैलरी में होनी चाहिए, जिससे मान लिया किसी स्कूल के बच्चे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या मान लिया ATL की हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं उसके अंदर. इन बच्चों को स्पेस से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ मॉडल बनाना है, तो दे कैन गो टू दैट साइंस गैलरी, सी द लिटरेचर, क्या बुक अवेलेबल है. अब इसरो ने भी इंडिया में बहुत अच्छी एटलस बनाई है मार्स के ऊपर और मून के ऊपर, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट्स गए हैं, हमने इतने फ़ोटो लिए हैं, उस फोटो के बेस पे बहुत अच्छी एटलस हमने जनरेट करी हैं इसरो ने. तो अगर हम एक एक कॉपी उस एटलस की वहाँ रखें गैलरी के अंदर, बच्चे आएँ देखें कि भाई चांद आगे दिखता कैसे है, उसकी हमने पूरी डिमार्केशन कर रखे हैं एरियाज. मून के ऊपर, मार्स के ऊपर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पे क्रेटर्स हैं, उनके बारे में लिखा हो. तो ऐसी बहुत सारी बुक्स, इसरो भी उसमें हेल्प कर सकता है हमको, अगर हम इसरो से मांगेंगे. इसरो के जो पब्लिकेशंस हैं इसरो ने की है, वो बच्चों के लिए बहुत सारे उन्होंने मैगजीन्स भी निकाली हैं, दूसरी बुक्स भी लिखी है, उसकी एक एक कॉपी ये सब गैलरी के अंदर रखें. बच्चे वहाँ पर आएँ, सैटरडे संडे बैठें, या शाम को जब स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद दे कैन सिट देयर, और वहाँ पे अपना पंखा लगाया, बिजली है, कुर्सी है, बच्चे वहाँ बैठेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड. कुछ हम एक टीवी सिस्टम भी वहाँ लगा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर बेस्ड किसी को कोई PPT देखना है या कोई फाइल देखनी है स्पेस से रिलेटेड, उसकी CDs वगैरह वहाँ अवेलेबल हो, तो जिससे बच्चों की जानकारी उससे बढ़े और वो अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट स्कूल में बना सकते हैं. कई बार टीचर बोल देगा तुम कुछ ऐसे लिखो या कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो उनको पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कहाँ से ये लिटरेचर ढूंढें. Anil ji, that is excellent. I think a space gallery concept can be very complementary to the ATL mission. So Anil ji is scheduled to speak on this forum for everyone. Anil ji is scheduled to speak on this forum on August 22nd. तो आप लोग प्लीज आइए और उसमें we will explore this idea of space gallery much further. एंड श्रीनिवास जी, धनिल जी, अगर आप लोग उस दिन आएंगे तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इस तरह से हम लोग कुछ मिलके कुछ कर सकेंगे. अब मैं इसको फॉर्मली क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ओपन कर रहा हूँ. अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा ताकि फ्री कोई डिस्कशन हो सके. तो जो भी अगर यूट्यूब पे हमें ज्वाइन किया है आपने, आप प्लीज कीजिए. और ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे फैसिनेटिंग प्रोग्राम्स हम जिस के
AI एजुकेशन ट्रैक पे करते रहते हैं। क्वेश्चन आंसर और आइडियाज जो अगर मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स